no political interference. Right from the first day, you enjoy kingly life. Kingly life means you will get the post of company commander, you will get 135 personnel under you, you will be number one there right from the first day. I will firstly tell you what CAPF is, though you know, but I will start right from the beginning. CAPF is the Central Armed Police Force. Earlier it used to be known as Central Paramilitary Forces. But after 2011, when Mr. Chidambaram was Home Minister, he brought this note, and Assam Rifle was excluded from CAPF. It comes under Central Paramilitary Force now. Paramilitary were the forces which used to work like army or police. A force between army and police used to be known as paramilitary. But then Central Armed Police Forces are the forces of union. As per constitution, there can be army, navy and air force. They are the three armed forces of the union. But besides that, other forces can also be armed forces of the union, which include CRPF, BSF, ITBP, SSB and CISF. Out of these five forces, there are many forces which are on deputation, like NSG, National Security Guard. If you get through CAPF, whatever force you get, whether CRPF, BSF, ITBP, SSB or CISF, you will get chance to go on deputation to National Security Guard, which is one of the elite force of the country. Crack commando force, you can say, Black Cat commandos. There you can have deputation up to 7 years. And you can be, earlier it used to be only in Delhi, now it has got hub across the country. In Hyderabad also, Calcutta also, all metro cities, National Security Guard has got its hub. I am audible to all? Yes, sir. Then there is a force, NIA, National Investigation Agency, which was recently formed. Many of our officers go on deputation to NIA also, National Investigation Agency, which is also a prime investigation agency of the country, besides CBI. Earlier there used to be only CBI, Central Bureau of Investigation. But now we have got NIA, National Investigation Agency, which can work under Ministry of Home Affairs, and its jurisdiction lies throughout country. Means NIA can investigate any case in any state without the permission of state. Then third is CBI, Central Bureau of Investigation. Our officers go on deputation to CBI also. Then NHRC, National Human Rights Organization or National Human Rights Commission. Our officers, even after retirement, they go on deputation or as a re-employed officer in NHRC as investigation officer. There is a post of DG investigation. So some of my friends, they worked as DG investigation after retirement also in National Human Rights Commission, which has got its office in Delhi, Sardar Patel Marg. Then there are many other forces which are sister organization of this CAPF, like SDG, Special Duty Group, which is responsible for outer cordon of PM, Prime Minister. Then there is the PDG, Parliament Duty Group. Its function is to secure Parliament. Then we have got SPG, Special Protection Group, which is for the security of PM and ex-PM and their family members. When Rajiv Gandhi was assassinated in 1991, I think it was 27th May 1991, when Rajiv Gandhi was assassinated in Chikmagalur. So a force was created known as Special Protection Group, SPG. No, it was created in 1986 after assassination of Indira Gandhi. On 31st October 1984, a Special Protection Group was created for the protection of PM and ex-PM and their family members. So most of the officers are from CAPF. They go on deputation and serve as a PM security officer at residence of PM and office of PM. Now they have got their own campus in Dwarka. About 100-acre campus is there. Mr. Chandrasekhar was ex-PM. He inaugurated it. And just Central Vista project, which is coming up near India Gate, the residence and office of SPG is coming up there with the office and residence of Vice President and PM and other dignitaries. So now you can imagine how important it be to be a part of CAPF, Central Armed Police Forces. It covers pan-India postings, no political interference. Right from the first day, you are
you enjoy kingly life. Kingly life means you will get the post of company commander, you will get 135 personnel under you, you will be number 1 there right from the first day. After training, you will get 3 star on your shoulders. During training, 1 star, then 2 star, and when you pass out, then 3 stars. So that is the charm. When हिंदी में मिक्स भी बोल सकते हैं ना कुछ लोग जो हिंदी में. एक जरा पानी का मंगवा दो. जब से कोरोना हुआ है थोड़ा मुंह जल्दी सूख जाता है. और तो कंपनी कमांडर की जो पोस्ट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट इन द सेटअप ऑफ CAPFs सेंट्रल. इट इज़ द हाईएस्ट गेजेटेड पोस्ट, equivalent to IPS and all class 1 services. Earlier it used to be class 2, but then officers were not opting for it, then it was made class 1. So it is at par with the IAS and IPS. Yeah. Now in the recent judgment we fought in the Supreme Court, first High Court then Supreme Court, on 5th February 2019, a judgment came in our favor that whatever posting, promotion and perks a IAS officer gets, all CAPF officer will also get on the same pattern. They will also get time scale promotion, they will also get NFFU, non-functional financial upgradation. If there is no vacancy and you are stagnating in one rank, then you will get the pay scale of that rank. Suppose I was promoted as ADG in my batch. Others retired, some retired as commandant, some retired as DIG, some retired as IG. So all those IGs who were equivalent to me when I was promoted as ADG, they will also get pay of ADG. They could not get rank of ADG because there was only one vacancy, but all of them will get pay scale of ADG. So that is known as NFFU, non-functional financial upgradation. My career in CAPF has been very, very charming, and I was 100% satisfied right from the first day till the date of retirement. In between, I thought of quitting, because my flair was I started my career as lecturer in physics. Somehow, without any guidance, and you may say it was destined, I joined CAPF. Once I joined, I was elated to get uniform, challenging job. My posting was very attractive. I got Delhi posting for long years. Wherever I went, it used to be my hometown. Then I served in entire Bihar, entire Northeast. हाँ पीता रहूँगा, वो थोड़ा कोरोना के बाद से ना थोड़ा मुंह सूख जाता है तो ज़्यादा बोलते नहीं. ये फोटो में तो नहीं खराब लगेगा. So first posting was in Aizawl, which was capital of Mizoram. तो I went with family. I inquired कि वहाँ फैमिली रख सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा सब आ जाओ, कोई नहीं, क्वार्टर है बहुत अच्छा और बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. तो होते होते वो एक सिलचर यूज टू बी रियर हेडक्वार्टर, वहाँ पे टेंट लगा होता था, उस टेंट में रुके तो लोगों ने चाय पिलाई, तो ऐसे सीढ़ी जाके थक गए हम उस पर चढ़ते चढ़ते, वहाँ जाके टेंट लगा हुआ था, उसको हम बोलते थे 180 पाउंडर टेंट. तो उसमें जाके चाय बिस्किट वगैरह जो हमारे सबॉर्डिनेट वगैरह थे वहाँ इंचार्ज थे, पोस्ट इंचार्ज बोलते थे, चाय पी के फिर हम लोग गए. तो एक छोटी बेटी थी हमारे पास, तो वो रास्ते में उसको दूध पीने की आदत थी, तो दूध नहीं था. फिर एक दुकान पर रुके, तो वहाँ उनको जो लोकल्स हैं दे वर नोन एज कप्पू एंड कप्पीज, लुसाई यूज टू बी द लैंग्वेज. तो उसने एक लेडी थी दुकान पे, उसने बोतल में दूध दिया, तो उसको सड़क पे लिटा के हमने बच्ची को दूध पिलाया कि और कोई थे नहीं. अच्छा, जैसे ही वी क्रॉस्ड वेरेंटी गेट वाज दी लास्ट पोस्ट फ्रॉम सिलचर. वेरेंटी गेट के बाद इट अपीयर्ड एज इफ वी हैव एंटर्ड इन ए न्यू कंट्री. एवरीथिंग चेंज्ड, लुक, कल्चर, ड्रेस, दे वर ऑल डिफरेंट दिस थिंग पीपल, मिजो पीपल. लुसाई वाज द लैंग्वेज, बट गुड पीपल, सम यूज टू स्पीक इंग्लिश ऑल्सो. और जब जाते जाते रात हो गई तो पूरा जैसे पेरिस शहर जगमगाता है, ऐसे आइजल नज़र आ रहा था. ऐसे लग रहा है कि कहाँ स्वर्ग में आ गए हैं. फिर गए तो उसने गोपाल दास वाज अवर सिक्योरिटी एड, जिसको हम बटमैन या अर्दरली कहते हैं, वो लड़का था. वो तुरंत कि नए कंपनी कमांडर साहब आ रहे हैं, गर्म पानी करके लाया, उसमें पैर रखे, उसमें नमक डाल के पैरों में कि थक गए होंगे. वी वर नॉट यूज टू दिस ट्रीटमेंट, कि हमने कभी उम्मीद नहीं की थी ऐसे करेगा. उस देन ही केम विद हिज अटेंडेंट बंताराम, हु वाज ए कुक, कि साहब ये आपके लिए चाय बनाएगा, ये करेगा. फर्स्ट डे दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस. रास्ते में पूरा ट्रीट करते, और नो अदर सर्विस विल प्रोवाइड यू दैट ए वार्म वेलकम. इवन कलेक्टर गोज,
कोई पूछता नहीं है, जाके सीधे ज्वाइन कर लेते हैं, ज़्यादा एडीएम वगैरह एक बुके दे देगा या एक कप चाय पिला देगा। लेकिन आपके लिए पूरा 135 लोग वेट कर रहे हैं कि न्यू कंपनी कमांडर साहब आ रहे हैं, तो सब दे आर ऑल इलेटेड टू सी यू। फिर अर्ली मॉर्निंग योर रूटीन स्टार्ट विद द फिजिकल ट्रेनिंग। सुबह 5 बजे मार्का लगता है, मार्के में सब लोग जाते हैं। देन देयर इज ए सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग। पहले सीएचएम लेता है सबको कि कितने लोग अटेंडेंस में हैं। सीएचएम रिपोर्ट्स टू सब इंस्पेक्टर एडजुटेंट, सब इंस्पेक्टर एडजुटेंट रिपोर्ट टू सूबेदार मेजर, देन सूबेदार मेजर रिपोर्ट टू कंपनी कमांडर। तो दिस इज द चैनल ऑफ कमांड। तो दे रिपोर्ट कि श्रीमान जी आज इतने सब इंस्पेक्टर, इतने फॉलोअर्स और इतने जवान मॉर्निंग पीटी परेड पर हाजिर हैं श्रीमान, वो आपको रिपोर्ट दिया जाएगा। अच्छा, कई कंपनी कमांडर ऐसे हैं जो आलसी हैं, दे डोंट अटेंड मॉर्निंग मार्कर, दे डोंट गो टू द गेम्स। तो उस हफ्ते मैं तो ऑफिसर बन गया हूँ, तो दे ट्राई टू स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेट उठेंगे। तो वो डिपेंड करता है, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आई नेवर मिस्ड मॉर्निंग मार्कर। कई बार when we were in Punjab during terrorist operations, when terrorism was at peak in Punjab, even then if I come after raid or search operation at 3 o'clock in the night, I will join 5 AM morning marker। तो लोग सरप्राइज होते कि ये तो रात को वहाँ ऑपरेशन में गए हुए थे, कैसे आ गए 5 बजे। यू आर नॉट सपोज टू गो, बता दो कि साहब वो रात को लेट आए हैं तो नहीं आए हैं, लेकिन वो आदत थी। 5 किलोमीटर की दौड़ होती थी फिटनेस के लिए हर साल। When officers physical efficiency is tested, it is known as PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो उसमें टाइमिंग है कि एज ग्रुप वाइज कितने कितने टाइम में पूरी करनी है। तो हम हमेशा उसको एक्सेलेंट टाइम में पूरा करते थे। 17 मिनट यूज टू बी माई टाइम फॉर 5 किलोमीटर। तो एक इंटरेस्ट बनता रहता है। फिर जवानों के साथ शाम को 5 बजे गेम होता है। गेम में भी सब वेट करते हैं ओसी साहब आए तो अच्छा है, गेम आए या ना आए, पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट कि साहब हमारे ओसी साहब भी आए। चाहे आप सर्विस ही कर लो, चाहे ताली बजा लो, चाहे बैठ के देख ही लो, पर धीरे धीरे फिर आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो जो एक चैलेंजिंग टास्क है राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, रेस्पेक्ट भी है, रूटीन बहुत हेल्दी है, और आपको ऑल थ्रू बहुत वेरीड टाइप ऑफ फंक्शनिंग करने को मिलते हैं जो आप डिस्चार्ज करते हैं ड्यूरिंग योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज कंपनी कमांडर। तो इट इंक्लूड्स फिजिकल फिटनेस, लीडरशिप क्वालिटीज़, operational duties, you supervise how you will divide the operational duties, then man management, how you will judge personal requirement, welfare of the personnel, किसके घर में क्या दिक्कत है, तो कैसे आप वो एक रैपो डेवलप करते हैं। इट इज़ ए अनरिटन मेंटल कॉन्टैक्ट बिटवीन गवर्नड एंड गवर्नर्स। आप उम्मीद करते हो कि मेरे जवान मेरे लिए ये काम करें, वेल ड्रेस्ड हों, कोई गलत काम नहीं करें, वेल बिहेव्ड करें, आपस में झगड़ा नहीं करें, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। और वो उम्मीद करते हैं हमारे कंपनी कमांडर साहब जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, लीडरशिप की, गाइडेंस की, छुट्टी की और किसी सपोर्ट की, तो आप विलिंगली वो सपोर्ट उनको एक्सटेंड कर सकें। तो इस तरह का एक माहौल रहता है जो बहुत ही होमली रहता है, जिसमें यू आर ऑलवेज ए वीआईपी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। फिर उसमें सीनियर्स आपके कमांडेंट कहीं होंगे, उसमें आपका बटालियन हेडक्वार्टर कहीं होगा, उनके वायरलेस सेट से आपका संपर्क होगा। कई बार आजकल तो मोबाइल आ गए, मोबाइल से आप बात कर सकते हो, लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि कंपनी कमांडर साहब कहाँ क्या कर रहे हैं। वो पर्सनल चॉइस है, आपका अपना है, लेकिन एज ए होल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वंडरफुल इन CAPF। अभी आप देख रहे हो 41 साल मैंने नौकरी किया, एक भी दिन कोई ऐसे महसूस नहीं हुआ कि जो हमारे बच्चे या फैमिली या उनकी एजुकेशन पे कोई गलत फ़र्क पड़ा हो। अचानक दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गया अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, तो यहाँ से गए बंगाईगांव, वहाँ से एक ट्रेन पकड़ी रंगिया से, उससे एक छोटे से स्टेशन पर उतरे हैती, वहाँ से फिर गाड़ी आ गई लेने, गाड़ी लेके गए। जहाँ भी जाओगे आपको मैन पावर एंड व्हीकल सपोर्ट हमेशा रहेगी, जहाँ भी जाओगे थ्रू आउट इंडिया। अभी भी जाते हैं तो हमको सब जहाँ भी जाते हैं सारी फोर्सेज सपोर्ट देती है। तो अरुणाचल प्रदेश चले गए, ईटानगर में रहे, तो वहाँ पे एक चिल्ड्रंस एकेडमी थी, 3 बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि एडमिशन करा दिया बच्चों का। अनसर्टेनिटी है कि अब क्या जाएंगे, पता नहीं कितने दिन यहाँ रहेंगे, यूनिट इज अंडर मूव या नहीं होगी। तो इतने अच्छे लोग थे नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने फीस नहीं ली बच्चों से कि सर आपका पता नहीं कब ट्रांसफ़र आ जाए, यूनिट इज अंडर मूव, सो वी विल टीच देम एंड वी विल नॉट चार्ज एनी फीस। हमने जिद किया, बोलने नहीं सर आप इन लियो ऑफ फीस आप कभी बस दे देना हमको पिकनिक के लिए, कभी कुछ दे देना, इस तरह का सपोर्ट दे देना। तो तीनों बच्चे पढ़े और दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। इतनी क्वालिटी एजुकेशन थी कि हम देख के दंग रह गए।
साइक्लो स्टाइल पहली क्लास में, दूसरी क्लास में बच्चों को साइक्लो स्टाइल नोट, उसमें करेक्शन टीचर करती, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता था। वो नॉर्थ इंडिया में उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन कहीं हमने देखी नहीं। मिजोरम बहुत ही लिटरेट स्टेट होता था, जहाँ पे लिटरेसी लेवल काफ़ी हाई था केरला के बाद। और एक जगह नागालैंड में मुकोकचुंग होती थी, मुकोकचुंग वाज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट वंस अपॉन ए टाइम, और वो भी पूरा अलग कल्चर होती थी। वहाँ पे बर्मा बॉर्डर नज़दीक था, तो वहाँ से इम्पोर्टेड सामान आता था, तो घर छुट्टी आते थे तो कभी पैंट, बच्चों के लिए कपड़ा, बाबा सूट, जूते वो लेके आते थे। वो 9 रुपये का बेबी सूट मिलता था बच्चों का, जो हमारे तीनों बच्चों ने एक एक बाद पहना, छोटे बच्चे ने, फिर बड़े ने, फिर उससे बड़े ने, और वो फटता ही नहीं था। फिर हमने वो किसी को दे दिया कि तुम पहनाओ। जूता भी फटता नहीं था, 30 रुपये का जूता आता था, वो इम्पोर्टेड जूता। तो ये सब सिफर का पेन आता था 6 रुपये का, तो वो लेके आते थे, 8-10 यार दोस्तों को बांट देते थे कि ये लो मिजोरम से आए, सिफर का पेन रख लो। तो इस तरह का मौका बाकी जगह नहीं मिलेगा। आप बाकी लोग हमसे पूछते थे। अच्छा, कई बार ऐसे हुआ चुनाव कराया तो उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ गए, स्टेट के ऑब्जर्वर आ गए काफ़ी लोग, तो वो एक टीम बन के चलते थे। हमारी सिक्योरिटी तो फुल है, उनकी सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो उनको डर रहता था, तो हमें साथ इंटीग्रेट कर लेते थे कि साहब साथ साथ चलते हैं, चलो जहाँ जहाँ भी चलना है। तो एक बार एक होशियार सिंह थे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, तो जहाँ भी जाए वो बहुत गुस्से वाले थे, और तुरंत जहाँ भी जाए बोले अच्छा सिम नहीं मिल रहा है इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए, हुई जनरल मैनेजर वहाँ गए, उसको फ़ोन किया दिल्ली में मिनिस्ट्री में, और फ़ोन सस्पेंड करा दिया जीएम साहब को। इसके बाद कमिश्नर साहब के यहाँ गए, तो वहाँ गुस्सा होकर आ गए कि अच्छा ये क्या हो रहा है, सब पे नाराज़ होकर टेरर मचा के रखा हुआ था। तो हमारी यूनिट थी 144 बटालियन, भोपाल में उसका हेडक्वार्टर था। हम लोग आए हुए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव कराने के लिए। तो मैंने कहा हुआ था कि हमारा कोई भी जवान, ही विल ऑलवेज लुक बेस्ट, उसके ऊपर कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। जो अल्टीमेट लिमिट है, यू शुड प्रिपेयर सो मच सो दैट यू आर द बेस्ट। गाड़ी भी इस तरह से होनी चाहिए, जो गाड़ी ख़राब है, सेल्फ स्टार्ट नहीं है, बैटरी डिस हो रही है, पेन ठीक नहीं है, और भी कोई चीज़ ख़राब है, तो इट विल नॉट लीव द कैंपस, ओनली इन बेस्ट कंडीशन व्हीकल विल गो आउट। तो लोग पूछते थे आपकी कौन सी यूनिट है, मगर जिसका सबसे बढ़िया जवान नज़र आए आपको और सबसे बढ़िया गाड़ी नज़र आए वो हमारी यूनिट है, नाम की ज़रूरत नहीं है। बोले साहब आपके यहाँ आना चाहते हैं तो मगर जब मर्जी आ जाओ। बोले मैसेज कर देंगे, मगर हमें मैसेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू डिजायर एंड देन वी विल रिसीव यू। बोले साहब ऐसे कैसे, मगर ऐसे ही होता है। तो जहाँ हमारा हेडक्वार्टर था वहाँ पे 2 ट्रेनें आती थी, एक आसाम ब्रह्मपुत्रा मेल और एक राजधानी। तो उसकी टाइमिंग हमारे फिक्स थे कि इतने बजे ब्रह्मपुत्र मेल आएगी, इतने बजे राजधानी सुबह आएगी। तो हमने एक गाड़ी लाइट व्हीकल, एक मीडियम व्हीकल, एक रेजिमेंटल पुलिस, एक फटीक, एक यूनिफॉर्म में रेजिमेंटल पुलिस आरपी तुर्रे वाला जो बिल्कुल लगे, रिसीव करने जाता था। अगर हमारा सफाई कर्मचारी भी आता है तो देन दैट रिसेप्शन टीम विल गो एंड रिसीव हिम इन द एयरपोर्ट, इन द रेलवे स्टेशन। वो घूम के देखेगा कि कौन आदमी हमारा आ रहा है, कौन आदमी हमारी यूनिट पर मिलना रहा है, एनीवन। और सर 85 यूनिट, 85 बटालियन, फलाना फलाना, ऐसे पूछता था क्या। हाँ, ही यूज्ड टू बी पिक्ड अप फ्रॉम द स्टेशन। इसके बाद गरम गरम उसको कॉफ़ी मिलती थी, मुंह जल जाए इतनी, बिल्कुल गर्म लेकर जाते थे, वॉकिंग डिस्टेंस पे स्टेशन था। तो कॉफ़ी उसको हमेशा याद रहती थी कि वो कॉफ़ी का टेस्ट इतना अच्छा होता था कि वो हमेशा दोबारा पीने की चाह रखता था कि भाई वो कॉफ़ी भूल नहीं पाए। इसके बाद वो ट्रेन जब सीटी देती थी तो वो मुझे जगाते थे कि सब ट्रेन आ गई, मेरे कोई मान लिया जानकार आ रहे हैं, तो मैं वाक शॉर्टकट से स्टेशन पहुंच जाता था। वो कहते थे कैसे आप आ गए, आपको तो हमने बताया नहीं। मगर यही तो कम्युनिकेशन स्किल है, इसी तरीके से तो आते हैं। तो these are known some of the innovative methods which you will evolve as a company commander and you will feel pride of doing things in a different way. तो जो ऑडिट वाले थे उसने कहा साहब आपके यहाँ आना चाहते हैं, तो वो आ गए और ही वॉज पिक्ड अप फ्रॉम द स्टेशन विदाउट एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ही वॉज लुक्ड आफ्टर वेल। तो उनके लिए हमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। कोई छोटे रैंक का आदमी आए, बड़े रैंक का आए, ऑलवेज लुक आफ्टर हिम वेल। ये आपकी एज ए ऑफिसर पर्सनल क्वालिटी है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी में बहुत चीज़ें होती, पर कई मच डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस, हाउ यू ट्रीट पीपल। कई लोग कहते हैं क्या सफाई कर्मचारी क्या करना है, छोड़ो, कोई मेरे से रैंक का ज़्यादा आएगा तब बताना। हमारे लिए ड्रिल था, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बीच में इसलिए शेयर कर रहा हूँ, दिस विल बी वेरी यूजफुल इफ़ दोज ऑफ यू हु विल गेट थ्रू। एक ड्रिल था कि वर्क नॉट चेक्ड इज वर्क नॉट डन। अगर आपने काम चेक नहीं किया तो समझो वो काम हुआ नहीं। तो देयर इज ए सिस्टम इन द फोर्सेज, पीपल से एज एन ऑफिसर यू विल आस्क, हाँ सूबेदार मेजर साहब ऑल ओके, सर ऑल ओके,
तो ऑल ओके मीन्स सब ठीक है। माई थिंकिंग वाज नथिंग इज ओके अनलेस यू गो इन टू माइन्यूट डिटेल्स व्हाट इज ओके। तो उसके लिए हमने पूरा सिस्टम बनाया हुआ था, परफॉर्मा सिस्टम, चेकलिस्ट सिस्टम, कि क्या क्या ओके है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ बोलते थे कन्वॉय, अब इस टॉपिक से बोर तो नहीं हो रहे हैं? इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि ये चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि मेरे मन में आ रही है तो लेट मी शेयर। कन्वॉय चलता था, आपने पुलवामा अटैक सुना होगा जो आई थिंक 13 दिसंबर को 13 फरवरी को 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे होता है, वैलेंटाइन डे पे पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। तो जो कन्वॉय चलती है, कन्वॉय इज ए सेट ऑफ व्हीकल्स विच गोज एंड मूव जम्मू टू कश्मीर टू पिक अप द लीव पर्सनल। जो छुट्टी जाने वाले होते हैं उनको ड्रॉप करती है जम्मू स्टेशन पे, और जो जम्मू छुट्टी से आने वाले होते हैं उनको पिक करके ड्यूटी पॉइंट पे लाती है। तो दैट व्हीकल कन्वॉय वाज मूविंग। तो मैंने देखा एक बार रात को लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया और कन्वॉय में लोग आए, कन्वॉय लेट आई और लोग चिल्ला रहे हैं कि साहब दरवाज़ा खोलो। और ये तो मैं भेजा, मगर पता करो क्या दिक्कत है, कि साहब वो फलानी यूनिट ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो कन्वॉय लेट आई है, तो लोग चिल्ला रहे हैं अंदर जाने के लिए, कई लोग उसमें भूखे हैं। वो दिल्ली पुलिस के भी कुछ लोग कहीं किसी केस वेस के संबंध में आए थे, CISF के लोग थे, मल्टीफेरस किसी की फैमिलीज थी। तो मैंने अपने SM साहब को बोला उन सबको अपनी यूनिट में ले आओ और लेके सबके लिए खाना बनवा दो। बोले साहब वो कोयला ख़त्म हो जाएगा, मैं कोयला और परचेज कर देंगे। तो ठंड का समय था, तो बोले सिकड़ी बोलते हैं जो बॉडी को गर्म करने के लिए कोयले की एक भट्टी होती है, उसको गर्म रखते हैं कि सिकड़ी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कोयला भी दो, खाना बनवा दो। तो मैं देखा ऐसी राउंड लिया तो कोई फैमिली थी, छोटा बच्चा गोद में लिए गाड़ी में बैठी हुई है, 3 टन में, कोई और है। तो मैंने उनको किसी को रिक्रेशन में, किसी को कहीं, सब के लिए अरेंजमेंट कर दिया, पूरे 1000 लोगों के लिए, कि ये सबको अरेंजमेंट कर दो। उसके बाद हमें बड़ा अच्छा लगा कि ये इस तरीके से हो गया। अगले दिन जब कन्वॉय जा रहा था नीचे के लिए, तो मैंने कहा कि जो हमारे IG थे उनको रिक्वेस्ट किया, साहब दिस ड्यूटी शुड बी गिवन टू मी, आई विल मैनेज इट वेल। बोले तुम तो STF कर रहे हो, ये कर रहे हो, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी कर रहे हो, क्या क्या करोगे? मैं कहा यू डोंट वरी, आई विल डू। तो मैं यह बता रहा हूँ कि जस्ट आउट ऑफ माई ओन इनिशिएटिव आई यूज टू टेक 10 टाइम्स मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन माई काउंटर पार्ट्स। जो बाकी कमांडेंट थे, अगर वो एक काम कर रहे हैं तो मैं 10 काम करता था। ये नहीं, राइट फ्रॉम कंपनी कमांडर टिल टुडे। तो उससे क्या है कि देन यू ऑलवेज फील प्राइड इन योर सेल्फ, गिव योर बेस्ट। तो मैंने क्या सिस्टम बनाया, गाड़ियाँ आती थी, देयर वर 38 बटालियंस। तो गाड़ी आती थी, मैंने कहा चलो 2nd बटालियन, 5th बटालियन, 3rd बटालियन, 20 बटालियन, ऐसे करके दीवार पे लिखवा दिया। फिर अगले दिन मैंने उसको चेक किया कि क्या हुआ। वो साहब वो गाड़ी लेट होगी, वो बड़ा गड़बड़ हो गया, 2nd बटालियन की गाड़ी पहुंची नहीं, वो बाद में आई। मैं कहा फिर छोड़ दो इसको, 1 2 3 4 ऐसे कर दो, 38 नंबर डाल दो। तो कोर्स करेक्शन बोलते हैं, मिड कोर्स करेक्शन। आपने एक बार ऑर्डर दे दिया तो कंपनी कमांडर सो जाता है कि मेरा ऑर्डर दे दिया, लागू करो। ऑर्डर देना काफ़ी नहीं है, यू एवरी डे यू हैव टू सुपरवाइज क्लोजली सो दैट यू सी कहाँ कमी रह गई। तो देयर इज ए सेइंग, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो फाइंड द शॉर्ट कमिंग एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। तो मैंने उसकी कमी देखी, ये कमी है, 2nd बटालियन तो लेट आएगी, वो दूर से आती है, इसलिए 2nd को मैंने नंबर 1 पे रख दिया, तो वो पहुंच ही नहीं पाएगी, और गाड़ी आएगी तो क्योस मचा देगी, वो फिर ओवरटेक करती हुई जाएगी। तो मैंने जो फर्स्ट आए वही फर्स्ट पर आ जाए, और बैरियर लगा दिया। बैरियर पे उसका एंटी टाइम रिकॉर्ड होता था कि 5:02, 5:05, 5:07 लिख संतरी लिखता जाता था कौन सी यूनिट। अच्छा, इसके बाद चेक पॉइंट पे ही एट द बैरियर इटसेल्फ वो पूछता था इसमें गाड़ी में कितनी सीट है, सब 52 सीटर बस है, आपके कितने लोग हैं जो आपकी यूनिट के छुट्टी जा रहे हैं, सब 17 लोग हमारे हैं, बैलेंस सीट कितनी है, सब 52 में से 17 घटाओ, कितना हुआ 35, तो 35 सीट्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब नंबर 1 बस जो एक यूनिट की आई है उसके अंदर देयर आर वैकेंसी ऑफ 35 सीट्स फॉर अदर यूनिट्स जिनकी गाड़ी नहीं आ रही है। तो इस तरीके से वो कन्वॉय मैनेज होता था, सिर्फ एक सिपाही मैनेज करता था और बहुत एफिशिएंटली मैनेज करता था कि बैरियर लगा दिया, वहीं पे टाइमिंग नोट हो गया, गाड़ियों का सीक्वेंसिंग ठीक कर दिया, एक परफॉर्मा बनवा दिया कि यूनिट वाइज कितने लोग हैं, और जो कन्वॉय कमांडर होता था उसको सब चीज़ एक सीट पे रहती थी कि किस किस यूनिट के कितने आदमी, ड्यूटी पे कौन जा रहा है, छुट्टी पे कौन जा रहा है, फैमिली कितनी जा रही है, सामान क्या जा रहा है, स्टोर क्या जा रहा है, कितने बजे पहली गाड़ी है, कितने बजे लास्ट गाड़ी है, कितने बजे डिपार्चर टाइम है। और उसको मैं कहता था कि तुम्हारी सफलता इस चीज़ पर निर्भर करती है कि जितने लोग छुट्टी जा रहे हैं उनको अगर वो
ट्रेन जिसको पकड़ने जा रहे हैं वो ट्रेन अगर जम्मू मिल गई, वारंट एक्सचेंज हो गया, उनको अच्छी तरह बिठा दिया, देन यू आर पास्ट, अदरवाइज यू फेल्ड। क्योंकि कन्वॉय का जो पर्पज है, ऑब्जेक्टिविटी अगर ध्यान में नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सब मैं तो बहुत बढ़िया कन्वॉय चलाया, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, खाना भी रास्ते में बहुत अच्छा खिलाया, स्पीड भी ठीक रखा, पर सर वो बस 5 मिनट लेट हो गया तो वो ट्रेन मिस होगी लोगों की। तो कितनी असुविधा होती है अगर ट्रेन मिस हो जाए। तो ये चीज़ अगर ऑब्जेक्टिविटी ध्यान नहीं रखोगे तो देन योर पर्पज विल नॉट बी सर्व्ड। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क विच आई हैव डन एज ए एडिशनल चार्ज, कन्वॉय मैनेजमेंट। तो एक रोज़ एक डीजी थे जो सरदार जी थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, KN सिंह या क्या, KP सिंह, तो वो श्रीनगर में मैं उनको मिलने गया ऐसे आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो उन्होंने बुलाया, मैं गया था 15 मिनट के लिए, वो आउट ऑफ इंटरेस्ट वो बातचीत चलती रही, तो वो लंच टाइम हो गया, फिर बोला नहीं अभी कहाँ जाओगे, चले जाना, आप तो आए हो। तो इसी बीच में एक नलिन प्रभात हमारे ऑफिसर होते थे, उनको मैंने भी नाम सुना था। तो वो आगे एक सिविलियन आदमी, रैंक नहीं है, सेविंग भी नहीं बनाई हुई है ऐसी, तो बोले आओ नलिन, आओ आओ आओ। तो वो आगे नलिन प्रभात, मगर अच्छा ये नलिन प्रभात हैं, आंध्रा कैडर के, वो बड़े Z+ सिक्योरिटी में रहते हैं। ये जो 76 लोग मारे गए थे हमारे 6 अक्टूबर 2010 में, ये उन्होंने उसमें 36 घंटे का ऑपरेशन रखा था विदाउट अप्लाइंग। नए नए आए थे, उन्होंने कहा नहीं इतने देर के लिए बाहर निकलो, 76 पीपल गेट बूचर्ड। तो ऐसी बातचीत चली, तो वो कहने लगे नलिन प्रभात कन्वॉय की बात है, सब कन्वॉय तो एक HR सिंह साहब होते थे, जो उन्होंने कन्वॉय मैनेज किया आज तक कोई नहीं कर पाया। तो वो मैं यूनिफॉर्म में था, तो उन्होंने फिर मेरी नेम प्लेट देखी कि यही है HR सिंह, तो ना हम मिले थे कभी। तो जो कोई भी एनी गुड वर्क विच यू डू एज ए कंपनी कमांडर और एज एन ऑफिसर इन एनी फोर्स, दैट इज रिमेंबर्ड एंड दैट इज रजिस्टर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह का मोटिवेट होकर काम करो, ऑलवेज बी लुक आउट फॉर एनी सच वर्क विच यू कैन मैनेज वेल देन अदर्स। तो इस तरह का दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ कन्वॉय मैनेजमेंट। दे आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स जिस विच आई डिड विद फुल सेटिस्फैक्शन विद एडिशनल चार्ज। जो लोग अवॉइड करते, पीपल सर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी कि सब क्या करना है, अपना एंजॉय करो, अफसर बन गए बस, अपने बच्चों को देखो और अपना खुद को देखो, उससे क्या उतनी फिर उनकी इज्जत होती है। अभी जैसे मैं आज DG CRPF से मेरा 5 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो मैंने किसी ऑफिसर को फ़ोन किया, IG हैं वो, मैं कहा ऐसे ऐसे मैं जस्ट आई विल, बोले सर आप अभी आ जाओ, हैव लंच विद अस एंड बी विद अस, वी आर सो हैप्पी टू हैव यू, और 5 बजे तब तक वी विल बी विथ यू। मगर नहीं मैं आई विल कम 1 आवर बिफोर। तो कुछ टाइप वाइप कराना जो उनको देना, वो होमवर्क करके आया हूँ रात को, जेब में टॉकिंग पॉइंट लिखे हैं कि क्या बात है। दो आई एम नॉट सपोज टू, आई एम ए रिटायर्ड पर्सन, बट आई फील कंसर्न फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इतने साल नमक खाया है, इतने साल सर्विस की है। ऑलवेज थिंक वेल ऑफ दैट, बिकॉज थिंग नेवर एंड्स, और दैट थिंग विल टेक यू एट ए हायर पेडेस्टल ऑलवेज। तो यू आर वेरी लक्की that you have chosen CAPF as a career. I want to assure you that this is one of the best career option in the force as on today. There is no political interference from anyone. You have quality life. You are lucky in the way that infrastructure has improved manifold. Family accommodation has improved manifold. Children education improved manifold. Everything is improving. Compare, I joined in 1975 and now today it is 2022. Things are different. Any one of you have visited any of our center, any CAPF center? Which one? My father is in BSF. कहाँ पे? Gujarat. गुजरात. Which place? Bhuj. भुज. तो चेंज देखा, भुज में स्वर्ग लगता है उनका कैंप सर मैं श्रीनगर रहा था अपने पापा के साथ। हैं? श्रीनगर रहा था सर मैं अपने पापा के साथ में, पंथा चौक। पंथा चौक देखा कितना अच्छा कैंप है, बहुत बढ़िया कैंप। कितनी हरियाली की रेट, मेरा सारा देखा हुआ है। अब वाट एवर नेम यू से, आई हैव मूव्ड एवरीवेयर, ITBP, CRP, BSF, CSF सब कैंप देखे हुए हैं हर जगह। हम लोगों को एयरपोर्ट पे लोग रिसीव कर लेते हैं, फ़ोटो से पहचानते हैं, अरे सर आप वो हो जो धरने पे हमारे साथ बैठे थे जंतर मंतर पे, 5000 बच्चों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था SSC GD का, तो हमने धरना दिया उनके लिए, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया एंड दे गोट अपॉइंटमेंट। अब वो वहाँ पे हमें पता नहीं था कि एयरपोर्ट पे CAPF के लिए एक सेपरेट लाइन है, तो बहुत भीड़ थी। हम लोग कहीं बैंगलोर जा रहे थे किसी उसमें, तो उन्होंने कहा कि अरे सर सेल्फी लेते हैं, आप तो वो हो जो धरने पे बैठे थे। मैं कहा हाँ हाँ, तो सेल्फी ली। बोले सर वहाँ क्यों जा रहे हो, ये सर CAPF के लिए है, आउट ऑफ टर्न यहाँ इसमें चेक इन करा लो। तो वो कर रहे थे तो हमने भी वहाँ करा लिया, तो टाइम बच गया। तो इस तरीके से आपको जो आपके जवान हैं और सबॉर्डिनेट्स हैं, दे विल ऑलवेज टेक यू एज ए लीडर
एंड दे विल ऑलवेज लुक आफ्टर यू। जहाँ भी आप मिलोगे तो आपको वो बहुत अच्छी भावनाओं से आपके लिए अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, प्रोवाइडेड यू ऑल्सो हैव गुड फीलिंग फॉर दैम। अभी बहुत सारे केसेस सुसाइड और फ्रैट्रिसाइड के फोर्सेज में होते हैं। आपने सुना होगा अभी जोधपुर में एक जवान ने सुसाइड कर लिया, न्यूज़ में सुना होगा, जिसमें वहाँ के बनवारी लाल जो लोकल एमएलए थे वो सपोर्ट में गए, धरना प्रदर्शन हुआ और बाद में गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी। एक डीआईजी थे भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने उसको इल्टीट किया, बोले तू पहले आ जा, तुझे मैं देखूंगा, लीडर बनता है तुझे मैं सीधा कर दूंगा। उसकी पता नहीं आजकल टेक्नोलॉजी में जवान भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, और वो वायरल कर दिया उसने उसका, देखो साहब ये डीआईजी साहब ने, मैं तो बहुत अच्छा आदमी था, मैं तो कुछ उनको बोला ही नहीं, और मैंने कहा नहीं सर मुझे क्षमा कर दो। बोले तुझे लीडर बनता है, तुझे बताऊंगा मैं तुझे सीधा करूंगा, आ तू हेडक्वार्टर। और इस तरह से कर उसने आके फिर डिप्रेशन में आ गया और हथियार लेके अपने को बंद कर लिया, और देन अल्टीमेटली ही किल्ड हिमसेल्फ। तो इस तरह की बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं जो मिसमैनेजमेंट से और ऑफिसर्स के और जवानों के गैप की वजह से होती है। तो वी शुड फील ए पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट। If there is any shortcoming in the system, in the CAPF working, whenever you feel, try to improve it. When I was in Muzaffarpur, so we were given the Dharamsala as a accommodation. तो कंपनी कमांडर ऑलवेज गेट वेरी गुड accommodation, बहुत बढ़िया महल जैसे लगता था, उसमें हमारा दे दिया। बाकी जवान लोगों ने अपने लिए टेंट वेंट लगा लिए, वहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह था, खेती वेती होती थी, बहुत अच्छा कैंपस था। तो सब लोग खुश हो गए थोड़े दिनों के बाद ही। तो अब हमारी फोर्स एक प्लाटून डेली जाती थी और थाने में जाके बैठ जाती थी, शाम को थक के आ जाती थी, उनका खाना सप्लाई करो गाड़ी से। तो मैंने वहाँ के एन के अग्रवाल यूज टू बी डीएम, मैं उनको मिलने गया। मैंने कहा सब एक बात बताओ भाई, यू आर टायरिंग अवर फोर्स, आपको खतरा है किस चीज़, क्यों आप थाने में बुला के बैठा देते हो रात दिन? कि नहीं वो ऐसे कभी, मगर अचानक मेरा रिएक्शन टाइम है 5 मिनट, आप एसटीडी फ़ोन दे दो मुझे और 5 मिनट के अंदर देखो कभी भी आप मुसीबत में, जस्ट कॉल मी एंड यू विल फाइंड अस देयर। तो एक रोज़ उन पर वो कहीं एनक्रोचमेंट हटाने के लिए गए, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में, और उनके ऊपर पथराव होने लगा। तो उनको मेरी बात याद आई, तो तुरंत उन्होंने फ़ोन किया, 5 मिनट से पहले वी रश्ड देयर, और उनको बचा लिया हमने डीएम को। उसके बाद तो हमारे फ़ैन हो गए, वो बोले साहब मैं तो ऐसा इतना प्रॉपर, इतना प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स आज तक नहीं देखा, आई नेवर इमेजिन कि इतना भी हो सकता है। मैं कहा हम तैयार करके रखते हैं एक प्लाटून को, 1/3 इज ऑलवेज रेडी, बिल्कुल उस मोड में रहती है, गाड़ी तैयार, ड्राइवर सीट पे बैठा है, पर कैंप में रहेगा, थाने में नहीं बैठेगा। उसके बाद से एसटीडी फ़ोन दे दिया उन्होंने हमें, एसटीडी फ्री हो गया, और वो मेरे पर्सनल फ्रेंड बन गए। होम सेक्रेटरी रिटायर हुए पटना से। तो बाद में क्या था, हमारा टेन्योर होता था कि ये कंपनी रोटेशनल ट्रेनिंग में जाएगी, उसकी जगह दूसरी कंपनी आएगी। आई यूज टू अपोज इट कि अननेसरी मूवमेंट वी शुड मिनिमाइज, वाई टू पुट अवर जवान्स इन अवॉइडेबल मूवमेंट्स। तो हमारे कमांडेंट साहब थे, उनकी और हमारी राय मिलती नहीं थी, तो वो कह रहे नहीं। तो देन ही प्रेशराइज मी टू मूव द कंपनी, कि आप अभी मूव करो एंड इंटीमेट मी अवर्ली प्रोग्रेस, कि क्या हुआ। तो मैंने उनको कहा, जो डीएम थे, मैं कहा देखो ये कंपनी है, फैमिलियर है, वी नो एवरीथिंग, वी हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इफ़ वी मूव अदर कंपनी विल टेक मिनिमम 1 मंथ टू अंडरस्टैंड द ड्यूटीज़। तो उन्होंने सीधा ऊपर बात करके और बोला दिस कंपनी शैल नॉट मूव। तो बात ऊपर पहुंची, फिर डीआईजी ऑपरेशन की, उन्होंने कहा साहब एचआर सिंह साहब तो हुक्म नहीं मान रहे हैं, और बोले अच्छा ऐसा है। फिर क्रैश मैसेज आया, स्टार्ट मूविंग कंपनी, विड्रा कंपनी लिटरली फोर्थविथ एंड इंटीमेट हाफ आवरली प्रोग्रेस। तो मुझे भी पता था ये सब उछल कूद कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं होगा। तो मैंने कहा कि सब रिक्वेशन फॉर ट्रांसपोर्ट गिवन विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बोला पैकिंग हैज स्टार्टेड अगले घंटे में। फिर तीसरे में कहा कि आई एम ब्रीफिंग द मैन अबाउट द डिसिप्लिन एंड मूवमेंट ड्रिल्स। चौथे घंटे में आ गया कि दिस कंपनी होम स्पेशल डिजायर्स, दिस कंपनी विल नॉट मूव, शैल नॉट मूव, लोअर फॉर अदर फॉर्मेशन टू कंप्लाई। तो हम लोग वहाँ 3 साल रहे, जो हर 3 महीने में चेंज होता था, कभी नहीं हुआ। एज ए कंपनी कमांडर आई नेवर अलाउड माई कंपनी टू मूव अननेसेसरीली। क्यों? लॉजिक था। तो उसमें कई बार अब हम समझते हैं कि हमें अपने हायर अप्स को नाराज़ नहीं करना चाहिए था, और भी तरीका हो सकता है, बट दैट वाज आई एम गिविंग एग्जाम्पल विच आई डिड, और उसका हमें सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो CAPF में ये मैंने आपको एज ए माई लाइफ एज ए कंपनी कमांडर, एंड देन द जॉब सेटिस्फैक्शन विच आई केप्ट ऑन गेटिंग right from company commander, then assistant commandant, then deputy commandant. You are getting as assistant commandant. Earlier it used to be
Deputy Superintendent of Police was the entry level. Assistant commandant used to be next promotion, but now you are getting assistant commandant. Next promotion is deputy commandant. Deputy commandant, there are 3 deputy commandants in a unit. One of them is QMMTO, quartermaster, motor transport officer. He is in charge of the 30-40 vehicles. One is adjutant, deputy commandant adjutant. He is staff officer to the commandant. His job is to ensure discipline, movement and other thing on behalf of the commandant. And third is account officer. He is now known as second in command. Who is the senior most? He will be second in command. There is a demand that second in command should be known as commandant and then senior commandant. So it is also perhaps in some forces they have implemented it. Now instead of second in command or 2IC, there is a post of commandant and senior commandant. So one of them is in charge of accounts and one of them is in charge of operations. So इस तरह से there are 2 commandants in some of the units. Third post, earlier it used to be additional DIG, additional Deputy Inspector General Police, additional DIG. He used to be in charge of group centers. Now it is DIG. After 6th pay commission, all the post of additional DIGs was upgraded to DIG. So rank structure will be assistant commandant, deputy commandant, second in command, commandant. Now there is only one commandant selection grade. Earlier it used to be commandant non-selection grade, commandant selection grade. Now there is only one commandant with Ashoka and 2 stars. That is the commandant. Then DIG, then IG, then ADG. And maybe in few years you will get even DG. जैसे coastal guard में हो गया. Cadre officer is the DG. But I personally feel if you work jointly with IPS officers, there is no harm, because after all they are also have got rich experience and most of the IPS officers are good officers. ऐसा नहीं they are our rival. ऐसा नहीं जो some of people feel कि वो IPS है वो आके top position पे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है. They also respect you. Or because of that I am going to meet DG because he is a man, DG of the man. आते ही उसने जवानों के साथ पुशअप लगाए, वो वीडियो उनका वायरल हो गया. तो ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है. अपने के विजय कुमार थे जो वीरप्पन को मारा था, हमारी बैच के ऑफिसर थे 75 के, वो जवानों के साथ नया साल मनाते थे, वहीं एम्बुश में लेट जाते थे 1 जनवरी को, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे. और दूसरे ये डीजी आए हैं, इनकी 3-4 दिन में ही अभी टेक ओवर किया इन्होंने और विद इन फ्यू डेज बहुत ही अच्छी रेपुटेशन बन गई है. सब जवान इनको कह रहे साहब बहुत ही अच्छे बड़े पॉजिटिव आदमी. उन्होंने कहा कि जो चीज़ मेरे हाथ में मैं करूँगा, जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं मैं गवर्नमेंट को लिखूँगा, पर आप बताओ मुझे, आओ. तो इस तरह की चीज़, आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इट इज़ ओनली ए कैरियर ऑप्शन. They have chosen IPS, so they are IPS. We have chosen CAPF, but we should never compare that we are less in any way. I always used to feel कि we are the best. अभी भी still I feel better than IPS. क्यों? My posting has been very good. I have worked very well. I have contributed much more than what they have contributed. It is the personal thing. If you feel yourself you are capable of doing something, you will never allow you to let down. So that is the feeling. We should never compare within ourselves. Why should we compare with other forces? Every force has got good and bad points. So CAPF as a service career option is one of the best option. You will all get good career. You will get, if you don't get promotion, then you will get salary. हमारे टाइम में हैंड टू माउथ होता था. 325 रुपये से नौकरी शुरू किया तो कैसे बच्चों की फीस देते हैं. बच्चे हमारे कहते हैं पापा 10 पैसे या 10 रुपये पॉकेट मनी देते थे. उन्हें पॉकेट मनी कंसेप्ट ही मालूम नहीं है. बट दे आर ऑल वेरी हैप्पी. My daughter was all India topper in 12th. Then she did MBA from FMS. उसके लिए मैंने 2 लाख रुपए GPF से निकाल के रखे थे, क्योंकि ये MBA की फ़ीस 1.5 लाख 2 लाख से कम नहीं होती थी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में. तो उसने कंपटीशन दिया, एक आध जगह कैट का भी दिया, और इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला जो तो FMS का था उसमें उसका नंबर नहीं आया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में. तो बहुत डिमोरलाइज सी हो गई. मेरे ऑफिसर कहने लगे, तो एक रजिस्ट्रार थे दिल्ली यूनिवर्सिटी को, हमारे घर आए. ही डिमांडेड 1 लाख और 2 लाख रुपीज़ की, साहब आपकी बेटी इसमें आ जाएगी, ये दे दो. आई वाज इन नॉर्थ ईस्ट. तो फ़ोन आया तो मैंने मना कर दिया. मगर नहीं, ज़्यादा होगा तो यू डू अपना कुछ और करना, यू परसू योर स्टडीज़ एंड वाट एवर इज इन द डेस्टिनी दैट विल टेक प्लेस. वी विल नॉट. हम अपने वसूलों से क्यों गिरे. हमने कहा रिश्वत ना लेंगे ना देंगे तो बच्चों के एडमिशन के लिए क्यों रिश्वत दें, फिर वो सारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी. तुम्हारे अफसर कहने लगे साहब आप बच्चों के कैरियर से खेल रहे हो. 1-2 लाख आजकल क्या होता है, ज़्यादा हरिश्चंद्र बन रहे हो, दे दो 1-2 लाख मांगने आ रहा. तो हमने नहीं दिए. और 5वें दिन उसका सेकंड मेरिट लिस्ट में अपने आप ही नंबर आ गया विदाउट पेइंग. उनको पता होता है कि ये सेकंड लिस्ट में आ रहा है, इसलिए पैसा चलो निकाल लो जितना है.
तो जस्ट आई एम शेयरिंग यू दिस पर्सनल एक्सपीरियंस। तो बेटी ने FMS से किया, फिर वो उसको हॉस्टल नहीं मिल रहा था तो मैं यहीं माल रोड पे उसको एक किराए पे विजयनगर में कमरा लेके दिया 3,000 रुपये महीना। वो सी वॉज नॉट दैट रफ एंड टफ की जो बस से चला जाए, तो कभी उसकी यूज टू नहीं थी, क्योंकि स्कूल हमारे घर के पास ही था, बच्चे वॉकिंग डिस्टेंस चले जाते थे। तो एक उसके साथ एक और लड़की थी नॉर्थ ईस्ट की, वो उसकी पार्टनर बन गई। फिर हमारी बेटी को हॉस्टल अलॉट हो गया, उसको नहीं हुआ, तो कहने लगी क्या करूं पापा, ये जैसी ऐसे कह रही है। मैं कहा कोई नहीं, यू फॉरगो दी हॉस्टल, जब तक इसको नहीं मिलता इसके साथ रहे। फिर बीच में उस लड़की के फादर की डेथ हो गई। हमारी बेटी का सिलेक्शन RBI में हो गया कैंपस से ही, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो रोने लगी। तो मैंने कहा डोंट वरी, आई विल बी योर लोकल गार्जियन, और जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता आई विल पे दिस रूम रेंट वगैरह, आप रहो, डोंट वरी। वो फिर सेबी में मैनेजर लग गई। अभी कोई भी चीज़ होती है तो बम्बे से बाई ईयर आती है, और गिफ्ट छोटी छोटी मेमोरी बन जाती है। तो दीज आर द थिंग्स विच गिव यू सेटिस्फैक्शन एज एन ऑफिसर। तो ऑलवेज थिंक वेल, डू वेल, प्रिपेयर वेल एंड ट्राई टू गेट थ्रू इन फर्स्ट अटैम्प्ट ओनली। ये कोई ज़्यादा मुश्किल कंपटीशन नहीं है, मुश्किल है लेकिन मुश्किल उन लोगों के लिए है जो इसके लिए तैयारी नहीं करते हैं। मैंने जितनी भी पोस्ट पे तैयारी किया A to Z, राइट फ्रॉम कॉलेज छोड़ते, और जितनी भी पोस्ट किया फर्स्ट अटैम्प्ट में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वर क्लियर्ड विदाउट मच ऑफ प्रिपरेशन। कि इफ़ यू आर फोकस्ड, अभी जैसे बता रहे थे मिस्टर सोमरानी, इफ़ यू आर फोकस्ड एंड योर सिस्टम ऑफ प्रिपरेशन इज गुड, शुरू में लगता है कि ध्यान नहीं लगता है, थकान होती है, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब टेम्पो बनता है तो आपको वही चीज़ नज़र आएगी। आप यू विल सी असिस्टेंट कमांडेंट इन योर सेल्फ, देन यू विल लिव विद इट, ईट इट, स्लीप विद इट, नींद ही खत्म हो जाएगी। जो APJ कलाम ने कहा ना कि सपने वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं, सपने वो होते जो नींद उड़ा देते हैं। तो ये जो सपना आपका असिस्टेंट कमांडेंट बनने का CAPF में है, ये आपकी नींद उड़ा देगा कुछ दिनों के बाद। तो अभी दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आई कैन शेयर विथ यू। नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू नो मच मोर अबाउट CAPF, quality of life, promotion aspect, family life, education of children, infrastructure, any specific incident, relationship between subordinates and your peer group subordinates and your seniors. तो पूछे तो I will be happy to reply. आपने किस एज में किया था? Join. मैंने 1972 में जैसे BSc ऑनर्स किया तो मैं MSc में एडमिशन लेने के लिए जा रहा था। तो आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएट क्लास। तो एक ऑब्जर्वर थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, उनके बच्चे भी मेरे साथ पढ़ते थे, मतलब मैं उनको मैथ और फिजिक्स पढ़ाता था। तो जैसे ही मैं एडमिशन के लिए जा रहा, घर से निकला, तो उन्होंने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं सर ऐसे ऐसे MSc में एडमिशन लेने जा रहा हूँ। बोले नौकरी करना चाहते हो? मगर नौकरी के लिए तो पढ़ ही रहे हैं। बोले जाओ फलाने कॉलेज में मेरा नाम लेके ज्वाइन कर लो, वहाँ लेक्चरर की पोस्ट खाली है। तो जब मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने किसी और को सेलेक्ट कर लिया था। तो मैंने उनको कहा, मगर नहीं रहने दो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं साहब, उन्होंने भेजा है तो वो हमारी मैनेजमेंट कमेटी में है और आप कल से ज्वाइन कर लो। तो 260 रुपये पर मंथ पे मैंने एज ए लेक्चरर एक प्राइवेट इंटर कॉलेज में ज्वाइन किया, और मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया। तो मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं लाइफ ही बदल गई कि भाई अपना एरिया, अपने सारे आसपास के गांव के बच्चे, और मेरे से भी लंबे, टॉल एंड गुड लुकिंग। तो कमांड था मेरा सब सब्जेक्ट्स के ऊपर। जो मैं पढ़ाता था तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाता था। तो मैंने पहले ही दिन उनको एक मैथ का LCM का क्वेश्चन दे दिया, जो आपको भी अभी दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मगर जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा उसको 100 रुपये इनाम और एक विल्सन का पैर तुरंत गिफ्ट मिलेगा ऑन द स्पॉट। तो मगर आप खुद भी कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से करा सकते हो, अपने टीचर से करा सकते हो, और 24 घंटे का टाइम है, कल मुझे इसका उत्तर दे सकते हो। तो हलचल मच गई पूरे कॉलेज में। तो वहाँ जो प्रेसिडेंट थे कॉलेज के, वो भारतीय जनता पार्टी, उस टाइम जनसंघ बोलते थे, उसके अध्यक्ष होते थे, और जो वाइस प्रिंसिपल थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे। तो दोनों का ही दबदबा था, वो ग्रांट वगैरह मिलती थी कॉलेज को। फिर मैंने देखा कि यहाँ तो गलत प्रैक्टिस है कॉलेज में, नकल करवाते थे, पैसा ऐंठते थे, बिल्डिंग फीस लेते थे। हमको वो सब आदत नहीं थी। तो मेरे तो चूँकि सब लोग जानते थे, तो मैंने फिर 4 महीने के बाद वहाँ रिज़ाइन कर दिया कि आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ दिस करप्ट सिस्टम। उसके बाद मैंने एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड हाउसिंग का, जो असिस्टेंट ग्रेड एग्ज़ाम बोलते थे, उसमें अपॉइंटमेंट आ गया। 15 दिन उसमें नौकरी किया निर्माण भवन में। इसके बाद होली आई तो घर चला गया। तो वो बुलाते रहे कि साहब तनख्वाह तो ले जाओ, मैं छोड़ो अपने वेलफेयर फंड में डाल लो। आज तक नहीं लिया, वो अभी भी वो बैलेंस है उतना।
उस पर वहाँ भी हर चीज़ में सीखा हमने। तो जब हम लंच टाइम होता था तो राजपथ इसमें बाहर आ जाते थे, निर्माण भवन से सब लोग, तो वहाँ पे ये सतपाल जी महाराज का डिस्कोर्स हुआ करता था, उसको सुनते थे। तो कई चीज़ें उस टाइम इनिशियल स्टेज पे रजिस्टर्ड हो जाती थी माइंड में कि ये क्या चीज़ बता रहे हैं, एक एक चीज़ बहुत अच्छी बताते थे। उसके बाद फिर एक पोस्ट होती थी इंजीनियरिंग सुपरवाइजर फोन्स, दिल्ली टेलीफोन्स में, ESP बोलते थे। उसमें दैट वाज द हाईएस्ट नॉन गजेटेड पोस्ट, सिलेक्शन ऑफ विच वाज ओनली प्योरली ऑन मेरिट, विदाउट एनी रिटन एग्जाम, विदाउट एनी इंटरव्यू। तो हम दोनों भाइयों का उसमें सिलेक्शन हो गया एज ESP। और उसमें मैंने ज्वाइन किया कैलकाटा और बड़े भाई ने ज्वाइन किया जबलपुर। तो उसमें बहुत अच्छा इंजीनियरिंग वो बन गए। मेरा स्पेशल माइक्रोवेव में स्पेशलाइजेशन किया मैंने। फिर मैं देखा कि जब नौकरी लगी तो राजपथ एक्सचेंज में लग गई। वहाँ दिन भर बैठते रहे, दफ्तर बहुत बड़ा दफ्तर था, जो शायद DG का भी इतना बड़ा दफ्तर नहीं था, और सारी सुविधाएं थी, एक जीप मिली हुई थी, इम्प्रेस्ड मनी था 250 रुपये, 6 फोन इंस्पेक्टर थे, प्योन थे, पूरा रुतबा था। गुड़गांव से मैं आता था, बस से आता था, बस पास बनाया हुआ था। तब मैंने देखा कि ये तो सब पढ़ना लिखना बेकार है, यहाँ तो कुछ भी काम नहीं, नाम के इंजीनियर है, काम तो कुछ भी नहीं है। बैठे रहो, सब स्टाफ बाहर सोता रहता था, वो सब नंबर 2 में कहीं केबल काट दिया, फिर अपना पैसे बनाने के लिए वो केबल जोड़ के बेच के स्टोर से निकाल के, इस तरह की प्रैक्टिस थी। बहुत एक्स्ट्रा इनकम थी। मेरे 6 फोन इंस्पेक्टर थे, 6 के 6 गाड़ी से आते थे उस टाइम, इमेजिन करो। और मैं बस से आता था एज ए बॉस ऑफ दोज इंस्पेक्टर्स। तो मैंने कभी उस करप्ट चीज़ की तरफ देखा नहीं। आई नेवर प्रिफर्ड कि ये पैसा बनाना है या गलत काम करना है। तो मैं लेट आता था, मैं लॉ कॉलेज ज्वाइन किया हुआ था यहीं ARSD कॉलेज में। तो कभी 10 बज जाते थे, कभी बस लेट होगी ट्रैफिक की वजह से तो 10:30 बज जाते। तो इमरजेंसी जब लागू हुई तो छापा पड़ने लगा कि साहब कौन स्टाफ ऐसे जो लेट आते हैं। तो मैं लेट आता था तो वो क्रॉस लग जाता था अटेंडेंस रजिस्टर में। तो अगर 3-4 क्रॉस लग गए तो सस्पेंड हो जाओगे। तो जो हमारा प्योन होता था एक लड़का, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था, और ट्रंक एक्सचेंज था। उसमें लड़कियां, लेडीज़ काफ़ी एम्प्लॉयज़ होती थी जो सुबह सुबह पूरे सर्किट को चेक करती थी। तो जो प्योन था, मैं उसको कहता था, मैं तुम क्यों, मैं यहाँ फालतू फंड में CN पेड पे काम करता था। बोले साहब बस मैं ऐसे ही आ जाता हूँ टाइम पास करने, मेरा तो ये है। तो मेरे प्रति वो उसको सॉफ्ट कॉर्नर था। तो जैसे ही उसको पता चला कि मेरी वो ज़्यादा क्रॉस लगा हुआ था लाल स्याही से, अटेंडेंस रजिस्टर मंगा लिया ऊपर की, बताओ किन किन को सस्पेंड करना है। उसको लगा कि ये साहब तो अपना वहाँ ला भी कर रहे हैं और यहाँ तो काम कुछ नहीं, यहाँ बैठे यहाँ बैठे, जब काम ही कुछ नहीं तो क्या करना है। तो वो उसको जब लेके जा रहा था, और वो अटेंडेंस रजिस्टर प्योन बुक बोलते थे, तो उसने लाके और उसको पानी में ऐसे कर दिया भुरता बना के, जो वो पता ही नहीं चले मेरे कहाँ क्रॉस लगा हुआ है मेरे नाम के आगे। और जाके बोला साहब ये रहा, मरते मरते बचा। कि क्या हुआ? बोल साहब वो काई लगी हुई थी, स्लिप हो गया पैर में, ये भी हो गया। और उसने मतलब एक लॉयल्टी देखो एक जवान की, एक प्योन की, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी मेरे प्रति, कि वो नहीं होता तो मैं सस्पेंड हो जाता। तो 2.5 साल मैंने वो इंजीनियरिंग सुपरवाइजर फोन्स की नौकरी किया, ESP दिल्ली टेलीफोन शास्त्री भवन में, जिसमें 9 एक्सचेंज मेरे अंडर आते थे, राजपथ एक्सचेंज, दिल्ली कैंट एक्सचेंज, सेक्रेटरीट एक्सचेंज। बहुत अच्छा जुरिडिक्शन था। एक दिन दफ्तर में आओ, बाकी दिन आउटडोर लगा के टूर करो और उसका TADA ले लो, ये सिस्टम था। तो हमारे जो लोवेस्ट एम्प्लॉयज़ था वो भी सब कोई केबल जॉइंट, कोई एक्स्ट्रा इनकम बहुत थी लोगों को। जो एक डॉक्टर सेठी होते थे RMP, वो 5 रुपये सर्टिफिकेट बनाने का देते थे, उनको 1000 रुपये सर्टिफिकेट बनाने की आ जाती थी डेली। इस तरह के उसमें माहौल में काम शुरू किया। फिर एक मेरे दोस्त थे, वो इसके लिए कहीं अप्लाई किया हुआ था, मैं भी उनके साथ तमाशा देखने चला गया। तो होते होते वो दौड़ में हम अच्छे थे, लिखित में अच्छे थे, लिखित में नंबर अच्छे आ गए, दौड़ अच्छी हो गई, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। वो कलर ब्लाइंड में मेडिकल में रिजेक्ट हो गए। फिर मैंने सोचा, मगर जब इंटरव्यू आ रहा था तो मैंने कसम खाई थी कि जब तक क्लास 1 पोस्ट नहीं मिलेगी, और चाहे सिविल सर्विस के लिए एज कम थी, इसके लिए तो उस टाइम मेरी एज 19 साल ही थी। तो उसने कहा कि तब तक दाढ़ी नहीं काटेंगे, उससे सेविंग नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा इंटरव्यू है, 10 बजे बुलाया, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, डबल माइंड था, मगर मैं तो ऑलरेडी नौकरी कर रहा हूँ, सिलेक्शन पता नहीं हो नहीं हो। तो फिर मैंने लंच के बाद मैंने सोचा, मगर अब हाफ डे CL लेके जाता हूँ। तो बस से मैं हाफ डे CL लेके झड़दा कला ग्रुप सेंटर में गया। तो मेरी छाती भी कम थी उस टाइम, मुझे ये भी कॉन्फिडेंस था कि 32-34 निकलेगी। तो जैसे ही मैं गया तो उसने गुस्सा होने लगे, अब आ रहे हो 10 बजे से। मैं सब बस का भी था और मगर लेट हो गया। बोला अच्छा चलो। तो ऐसे कंधे पे हाथ रख के जाओ, ड्रेस चेंज करो और लास्ट बैच दौड़ रहा है उसमें शामिल हो। तो उसने उसको इशारा किया कि इनको दौड़ में शामिल करो। तो उसने सोचा जो हवलदार था, कोई सिफारसी आदमी जो इतना लेट आया है
और जो ऐसे इशारा करके बता रहे हैं, उसने कहा साहब 32-34 लिखो छाती, नापी नहीं, जबकि मेरी छाती 29 इंच थी। मतलब ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप मदद करते हो, आप पूरी अपनी बेस्ट देते हो, तो ईश्वर भी आपकी मदद के लिए आ जाता है। वो शाहरुख खान के पिक्चर का डायलॉग है ना कि कायनात कम्स टू यू, कोई एक पिक्चर है ना कि जब है ना कि ओम शांति ओम में, कि जब आप कहीं किसी अच्छे काम के लिए कोई काम शुरू करते हो तो कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। तो देखो उसने अगर मेरी छाती में निकल जाता तो होता ही नहीं। फिर दौड़ में बढ़िया आ गया, मैं पूरे जोश से दौड़ा और रिटन में बहुत अच्छे नंबर आ गया, सिलेक्शन हो गया। तो 400 लोगों में आई वॉज द ओनली वन हु वॉज सेलेक्टेड इन द प्रीलिमिनरी एग्जाम। रात के 10 बजे मेरा एंट्री हुआ झोड़दा कला में। फिर एक 1 टन गाड़ी से नजफगढ़ छुड़वाया, नजफगढ़ से गिर पड़ के किसी घर आके तिलक नगर रात को आश्रय लिया कि दूर से आए थे, अब कहाँ जाएँ, कुछ पता नहीं था। तो ये एक एग्जाम्पल थी। लोग कमेंट करने लगे, पुलिस की नौकरी के लिए आए हो, दाढ़ी नहीं बना के आए, सेविंग तो कराते, यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। मैंने कहा अरे सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो नौकरी में ऑलरेडी हूँ। तो मोरल जो है आपका, ऑलवेज फेस विद कॉन्फिडेंस, ये मान के चलो आपने सेलेक्ट होना ही है। हमेशा पॉजिटिव रहो और हमेशा होपफुल रहो। तो ये सब चीज़ तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब आप कोशिश करोगे और बेस्ट इंटेंशन से करोगे तो देयर इज नो रीज़न कि आप उसमें फेल हो जाओ। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही रखो चांस। कई लोग भर्ती, साहब मैं तो भर्ती देखने आया हूँ, कई ऐसे करते हैं। तो हम लोगों ने, आप यकीन नहीं करोगे, एक बार भर्ती चल रही थी, आई वाज भर्ती इंचार्ज, प्रिजाइडिंग ऑफिसर था। तो मैंने कहा इतने लाखों लोग आगे, 1000 पोस्ट हैं, क्या करें। तो दौड़ वोड़ चल रही थी। फिर हमारे बॉस आगे, उन्होंने ज़बरदस्ती दौड़ा दिया लोगों को कि जाओ इतना दौड़ो। तो मैंने कहा मगर साहब ये तो दौड़ इसमें लिखा नहीं है जो आप रिजेक्ट कर रहे हो फालतू लोगों को, एंड आई एम द इंचार्ज, व्हाई यू आर डूइंग दिस। बोलने नहीं, ये मेरा प्रेरोगेटिव। कैसे प्रेरोगेटिव है, तो वहाँ नारेबाजी लग गई, मुर्दाबाद, ये हो गए। फिर वो चले गए, बेइज्जती हो गया। मतलब मेरे से भी नाराज़ हो गए कि ये ज़्यादा दस्तूरी बन रहे हैं। मैंने फिर ये देखा कि ये अच्छा लड़का नंगे पैर आया है, चप्पल में है, मगर चलो फिट अनफिट, फिट अनफिट, फिट अनफिट, ऐसे राउंड लिया स्टेडियम में और उसी टाइम सेलेक्ट कर दिया 1000 लोग। जो अच्छे थे, परसेंटेज थे, वो किस चीज़ का फालतू फंड का टेस्ट है। सिपाही के लिए आ रहा है, जो आदमी देखने में अच्छा है और बिल्कुल गरीब घर से आ रहा है। 8वीं क्लास उस टाइम योग्यता होती थी, MSc पास तक उसमें अप्लाई किया। मैंने 8वीं पास को प्रायोरिटी दिया। तो 8वीं पास जो थे वो देवर सेलेक्टेड, और वो आज तक भी वो लड़के देवर दी बेस्ट लोट, कि ना उन्होंने रिश्वत दिया, ना उन्होंने गलत काम किया, उम्मीद के साथ आए बेचारे। फिर दौड़ वोड़ में सब फिट थे, वो तो एक दिखावा है। बाद में जो हम भर्ती करते थे, 10 लोगों को दौड़ाते थे पब्लिकली, 10 में जो बेस्ट, सब देख रहे हैं कि फर्स्ट कौन आया, 10 में 1 ले लेते थे। वो भी लोगों ने कई बार क्वेश्चन किया, साहब ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, वो तो टाइमिंग होना चाहिए। वो करते रहो तो फिर करते रहो। तो बहुत सारी मैथडोलॉजी है जैसे आप ज्वाइन करोगे, पर बेस्ट थिंग ये है कि ईमानदारी से आप अपना काम करो, लंबे समय तक करो, तो आपको रिजल्ट उसके मिलेंगे। आज हमारी मेहनत का और ईमानदारी का और जो हमने कंट्रीब्यूट किया फोर्सेज को, उसका रिजल्ट हमारे परिवार में सब पे नज़र आ रहा है, हम पे भी नज़र आ रहा है। हमारे साथ के लोग ऐसे ऐसे पेट निकला हुआ है, उनके बच्चों से परिचय कराते हैं तो हमें यकीन नहीं होता ये उनके बच्चे हैं कि फादर हैं। एक जो SHO थे हमारे साथ के, वो सिविल पुलिस में सब इंस्पेक्टर चले गए, फिर प्रमोशन हुआ, DSP बढ़ गया, रिश्वत शुरू की 10,000 रुपये से, फिर फर्जी किसी के खिलाफ मर्डर केस बनाया, सब शेयर करते थे। उनके बच्चे सब बेकार हैं कि वो जो गलत उससे पैसा, करोड़ों रुपए है, मुझे कहते हैं मेरे पार्टनर आओ कॉलेज खोल लो, ये ज़मीन है इतने एकड़, आप, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है कि हम ऐसे आदमी के साथ टाई अप करेंगे जो ईमानदार हो, मेहनती हो, राइटियस। ज़िंदगी में एक ही वर्ड रखा, राइटियसनेस, जो बुद्ध धर्म ने। मैं आपको 3-4 चीज़ें संक्षेप में बताऊंगा क्वेश्चन आंसर सेशन से। जल्दी तो नहीं है, लेट तो नहीं हो रहा, क्योंकि लंच टाइम बस हो गया, टाइम थोड़ा ही है। हम जो गुरु मंत्र देते हैं, आज भी मैं DG से मिलने जा रहा हूँ, उनके लिए 3-4 गुरु मंत्र लिख के जा रहा हूँ कि मैं उनको क्या कंट्रीब्यूट करना है फोर्स के लिए, आप कैसे और अच्छा कर सकते हो। बिकॉज मुझे उनकी इमेज पता चला कि ही वांट टू डू बेटर, तो मैं उनके लिए गुरु मंत्र लेके जा रहा हूँ। पहला गुरु मंत्र है वॉक एन एक्स्ट्रा माइल। अगर आपका पड़ोसी, आपने देखा ये दौड़ में कैसे आगे जा रहा है कि वो 3 किलोमीटर दौड़ लगा रहा है, तो तुम धीरे धीरे करो। तो कभी भी अपना टारगेट सेटिंग जो है ऐसा करो विच इज़ डूएबल, विच इज़ अचीवेबल, और उसके लिए एक रीच है। ये देखो, जैसे ये है, तो इसको मैं और एक्सटेंड करूँ तो 1 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ तक था तो यहाँ तक जा सकता हूँ। तो दिस इज़ माई रीच। अगर मैं यहाँ टारगेट कर दूंगा तो दैट विल नेवर बी अचीवेबल। तो जब भी आप टारगेट सेटिंग करो
कोई आपने तैयारी करनी है, कोई भी चीज़ करनी है, लिखो पॉकेट में कि क्या क्या करना है। मेरे हमेशा डेली पॉकेट में होता है आज क्या करना है। उसमें अगर मैं 5 काम लिखे तो 5 में 3 हो गए तो समझो बहुत अच्छा है। जैसे कल मैंने लिखा हुआ था कि सुबह जाके कटिंग करानी है, तो मैं शाम तक नहीं करा पाया, 6 बजे गया फिर मैं, क्योंकि वो माली आ गया सुबह। फिर वो जो मैं उसको रीअरेंज करता रहा अपनी प्रायोरिटीज़ को, और 6 काम थे, 6 में 5 हो गए, 1 रह गया, वो आज करूँगा। आज उसमें कैरी फॉरवर्ड कर लिया लिस्ट, टू डू थिंग्स, इसमें भी नोट्स में रखा है और पर्ची पे भी लिख लेता हूँ, जिससे वो चीज़, तो लाइफ, इट मेक्स लाइफ सिस्टमेटिक। तो वो चीज़ आप पे लागू होता है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा रखो, और टारगेट सेटिंग शुड बी रियलिस्टिक। इस तरह से अनरियलिस्टिक टारगेट सेटिंग करो, यू विल ऑलवेज फेस डिससेटिस्फैक्शन, जो अचीवेबल नहीं है। तो एक तो ये करो, वॉक एन एक्स्ट्रा माइल। दूसरा गुरु मंत्र है फाइंड द शॉर्ट कमिंग एंड टेक रिमीडियल एक्शन। अपनी कमी पहचानो कि कमी क्या है, उस कमी को एड्रेस करो। तो अगर टाइमली रेमेडियल एक्शन ले लिया तो देन यू विल इम्प्रूव। हर एक में अलग अलग शॉर्ट कमिंग होती है, सब आंख नहीं खुलती, आलस बहुत आता है, स्टडी मटेरियल नहीं है प्रॉपर, कंपनी नहीं है। हम लोग जब अखबार पढ़ना शुरू किया कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हमें जब बीएससी किया तो इंग्लिश नहीं आती थी। आई यूज टू फील वेरी शाई, एक सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोल पाते थे। फिर हमने इंग्लिश का पहली क्लास की बुक से शुरू किया, ग्रामर पढ़ा, टेंस पढ़ा, कोचिंग किया, और तब फिर सेंटेंस बनाना शुरू किया। फिर वोकेबलरी, डिक्शनरी खरीदी, वेबस्टर डिक्शनरी खरीदी, फिर ऑक्सफोर्ड खरीदी, फिर मिनी डिक्शनरी खरीदी। उसमें रात दिन लगे। अब मेरे कागज अभी तो बेटे ने अभी आके वो सब डिस्पोज ऑफ किए। मतलब इतने मोटे मोटे रजिस्टर मेरी हैंड राइटिंग से भरे रहते थे। तो उससे एक तो हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो गई, दूसरा एक एक चीज़ नई वोकेबलरी इंप्रूव हो गई। फिर जो भी चीज़ अखबार में आती थी 8 घंटे अखबार पढ़ने में लगते थे, आज 5 मिनट लगती है। कि नाउ वी स्कैन दी न्यूज़पेपर, क्या क्या है फटाफट बेस है ही अपडेट कर लेते हैं कि अच्छा ये हुआ, हु इज हु क्या हुआ, अपॉइंटमेंट क्या हुआ, इंसिडेंट क्या हुआ, वो सब क्लासीफाई क्या हुआ है कि कितने हेडिंग में हमने उसको न्यूज़पेपर को पढ़ना है। तो न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स। आपका अगर बेस तैयार हो गया तो आपने, जैसे मैंने बैटल्स एंड वार्स, तो मैं 1 सीटर में विश्वास करता था। जैसे एक सीट है 326 ईस्वी पूर्व से लेकर आज तक जितने बैटल्स एंड वार्स हुए टेबलर फॉर्म में कर दिया, सीरियल नंबर, नेम ऑफ बैटल, वेन्यू कहाँ पे लड़ा गया, पार्टीज किस किस के बीच में लड़ा गया, आउटकम क्या था, और एनी फॉल आउट, वो सारा एक सीट पे आ गया। इसमें सब वर्ल्ड वार भी शामिल हो गए, इंडो पाक वार भी हो गए, इंडो चाइना वार, सब कुछ हो गया। तो एक सीट पे आपको देख लिया। अब इसको अपडेट करने के लिए, मान लिया इसके बारे में कोई चीज़ आपको कहीं स्पेलिंग गलत है, किसी के नाम में शक है, कई बार जैसे जोजी ब्रोज टीटो मार्ग दिल्ली में है, उसके अखबार में स्पेलिंग गलत आती थी। फिर दूसरा अखबार देखा, तीसरा देखा, नोबेल प्राइज़ विनर है, उसके सही नेशनलिटी नहीं आती कई बार। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी देखा, वहाँ पे एक जनरल सेक्शन है। तो जिस चीज़ के लिए हमने 8 घंटे लगाए अखबार पढ़ पढ़ के नोट्स बनाए कि नोबेल प्राइज़ विनर है इस साल के 6 के 6 अलग अलग फैकल्टीज़ में, वहाँ पे वो हमें बोर्ड पे ही लगा हुआ मिल गया। तो 5 मिनट के अंदर वो पूरा हम उसकी फ़ोटोकॉपी करके ले आए। तो आपको तो सब चीज़ गूगल पे है और सब चीज़ रेडीमेड है। तो अगर इफ़ यू हैव एक प्रॉपर कंपनी तो उसको आपस में शेयर करो कि 3 क्वेश्चन मैं तैयार करती हूँ, 3 क्वेश्चन आप तैयार करो, इसके बाद 1 घंटे बाद हम डिस्कस करेंगे। तो उससे देन यू विल सेव टाइम। गति और दिशा, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर इम्पोर्टेंट। कई लोग सेल्फ पढ़ते रहते हैं, बहुत स्लो पढ़ते हैं, पर जब तक स्पीड नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं। तो डायरेक्शन भी ठीक होनी चाहिए, दिशा ठीक होनी चाहिए। अगर मुझे मान लिया करोल बाग जाना है तो दिशा किधर को मुंह करके खड़ा हूँ और कितनी स्पीड से जाऊँ, दैट विल मैटर। तो दिशा और गति दोनों ठीक होनी चाहिए। तो ये 3-4 गुरु मंत्र थे विच विल मेक योर स्टडी वेरी सिस्टमेटिक। एंड आई होप विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ AVKS एकेडमी, क्योंकि पहले क्या होता था, कमज़ोर बच्चे कोचिंग लेते थे। आजकल क्या वो बच्चे कोचिंग लेते हैं जो फाइनल में फाइनलिस्ट हैं, जिन्होंने सेलेक्ट होना है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। पहले ट्यूशन कभी करते हुए सुना, जो अच्छे बच्चे थे कभी कोई ट्यूशन नहीं करता था, कमज़ोर बच्चे ट्यूशन, सब ये गणित में कमज़ोर है इसका ट्यूशन लगा दो। आजकल जो टॉप है ना उसमें खेलते हैं, ऊपर के टॉप प्लेयर वो कोचिंग लेते हैं। ये अंतर आ गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी आप 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन आंसर है तो वो कर सकते हो।